on today's episode, Sunscreen Must podcast, which is all about protecting your skin and spreading the use of sunscreen throughout a year. We are diving into the world of dermatology with a focus on a topic which is very close to our heart. Yes, the role of sunscreen. All of us know that sunscreen is very important and it protects us from sun UV rays, which is very harmful for our skin. But did you know that it plays a pivotal role to manage acne? Yes, that's right. Sunscreen is not just about our protecting our sunburn, but it should be a part of our skin daily care routine. To guide us, we have very renowned dermatologist and cosmetologist Dr. Meghna Gupta from Ghaziabad, who will guide us how to protect our skin from these UV rays and why sunscreen we should apply throughout a year, not only in summer season. Welcome, Dr. Meghna. Thank you. Dr. Meghna, you have a beautiful skin. So, what routine you follow to maintain this beautiful skin? Basic routine which is required for normal people is cleanser, moisturizer and sunscreen. But if you're aging, you can use retinol and vitamin C serum to enhance your glow. So, Dr. Meghna, do you think that these UV sun rays actually harm us and it causes cancer also? Will sunscreen protect us from this? Exactly, sunscreen is must for every person nowadays. Sunscreen basically protects you from both UVA and UVB light. UVA is known to cause photoaging. UVB can lead to burns. So our sunscreen should be a blend of broad spectrum sunscreen which protects us from both UVA and UVB light. You know, summer is coming. तो ऐसा क्या है जो लोगों को पहले से ही अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही समर सीजन आए तो उनकी स्किन उतनी ही ग्लोइंग रहे जितनी हमारी विंटर्स में रहती है? जैसे ही समर्स अप्रोच करते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होने लग जाती है, एक्ने प्रोन होने लग जाती है, टैनिंग होने लग जाती है. लोग हॉलीडेज पर जाते हैं तो उनकी टैनिंग और बढ़ने के चांसेस रहते हैं. तो मेक श्योर आप एक फोम बेस्ड क्लेंजर यूज़ करें. नंबर 2, सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें. नंबर 3, ऐसा नहीं करना है कि आपको समर्स में मॉइस्चराइजर मिस करना है. यू कैन यूज़ अ मॉइस्चराइजर विच इज़ सूटिंग योर स्किन. इट इज़ वेरी नेसेसरी. So, Dr. Meghna, are there any sunscreen ingredients which a pregnant woman should know about it? Is it harmful or a pregnant woman can apply this? Pregnant women mostly require sunscreen because there is a chance of developing melasma. So we need to take care of कि pregnant women should always apply physical sunscreen. It should be a chemical free sunscreen because chemicals basically can lead to some sort of derangement. So we should avoid using chemicals. So, Dr. Meghna, you know that सबकी स्किन अलग-अलग होती है and किसी की सेंसिटिव स्किन भी होती है. तो हमें ऐसा क्या किस तरह का सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए और हमें कैसे चूज़ करना चाहिए कि वो सनस्क्रीन हमें सूट करे? So according to the skin type, we should use sunscreen. If you have an oily skin, you should use a gel-based sunscreen. If you have a normal skin, you can use a lotion-based or a cream-based sunscreen. If you have a dry skin, then you should use a cream-based sunscreen. So these are some things which you should take care of. If you have a sensitive skin, you should take care of कि आपको physical sunscreen use करना है, chemical sunscreen को avoid करना चाहिए. जैसे आपने हमें बताया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सनस्क्रीन हमारे लिए ठीक है और ये हमारी स्किन पर वर्क कर रहा है और ये बिल्कुल ठीक है हमारी स्किन के लिए? जब आप सनस्क्रीन अप्लाई करें तो मेक श्योर आप 2 फिंगर लेंथ ऑफ सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें क्योंकि वो एक इफेक्टिव डोज होगी जो कि रिक्वायर्ड होती है फेस के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑलवेज कवर योर फेस. आप कैसे जान सकते हैं कि सनस्क्रीन काम कर रहा है या नहीं? नंबर 1, वो कोई इरिटेशन तो नहीं कर रहा है आपके फेस पे. विद इन 48 आवर्स ऑफ एप्लीकेशन इफ़ यू सी एनी सॉर्ट ऑफ इचीनेस, ड्राइनेस या बम्पीनेस आपके फेस पर आ रही है, कोई इचिंग हो रही है, तो मीन ये आप सनस्क्रीन आपको सूट नहीं कर रहा है. बाकी एक सनस्क्रीन का लॉन्ग इफेक्ट आने में टाइम लगता है. इट मे टेक अप टू 3 to 6 months टू शो इट्स इफेक्ट, बट धीरे धीरे यू विल सी कि आपकी टैनिंग भी कम हो रही है, आपकी पिगमेंटेशन लाइट हो रही है. आपने हमें बताया. मैं भी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ एंड आई जस्ट गॉट माई सनस्क्रीन विद मी. तो आप एक बार चेक करके मुझे बताइए कि ये ठीक है या नहीं है. जो की इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें प्लीज आप मुझे बताइए. सो दिस इज एन एक्ने यूवी जेल. This is an oil-free, non-comedogenic, very water-resistant sunscreen. The good part is that it protects you from the UVA, UVB and visible light also. It has an SPF of 30 and PA factor 3+. So it is a good sunscreen. You can apply that. The important part is the amount of sunscreen that is need to be applied. So you need to apply 2 finger length of sunscreen.
सो यू नीड टू सी कि कितना सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना है. यू नीड टू अप्लाई 2 finger length ऑफ सनस्क्रीन. This is the amount of sunscreen. This you have to see कि this is the amount of sunscreen you need to apply daily. ओके अगर आपका एक लेयर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है तो यू कैन जस्ट अप्लाई 1 finger length एक बार में एंड देन री अप्लाई ऑन इट like after a minute or something. So it will get absorbed on your skin and it will last for 2 to 3 hours. Make sure you apply sunscreen 30 minutes before you go out in the sun. And apart from sunscreen, you need to cover your face. That is also the important point you need to take care of. So Dr. Meghna, क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो जैसे कॉमन पीपल जब सनस्क्रीन यूज़ करते हैं क्या मिस्टेक्स वो करते हैं? सबसे पहले वो सनस्क्रीन धूप में जाने से जस्ट 1 मिनट पहले लगाते हैं. ऐसा नहीं करना है. नंबर 2, सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन वो आपकी स्किन टाइप को सूट नहीं कर रहा है एंड देन दे मेक एन ओपिनियन कि सनस्क्रीन हमें सूट ही नहीं करती है. सनस्क्रीन शुड बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. ऐसा नहीं है कि हर सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ऑयली ही होती है. देयर आर ऑप्शन विच आर जेल बेस्ड विच आर गुड फॉर ऑयली स्किन. नंबर 3, लोग सनस्क्रीन लगाते ही नहीं है. उन्हें लगता है कि टोनर इंपॉर्टेंट है, आई क्रीम इंपॉर्टेंट है, बट दे स्किप सनस्क्रीन. तो दिस इज नॉट द थिंग. आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है. 2 finger length अप्लाई करना है. एवरी 2 to 3 आवर्स के गैप पे रिपीट करना है. सो डॉक्टर यू नो कि आजकल मेकअप प्रोडक्ट्स जो है विद SPF आ रहे हैं एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो कैन दे रिप्लेस आवर सनस्क्रीन और हमें उन्हीं से ही अपना प्रोटेक्शन मिल जाएगा या हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सी एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी. जो मेडिकेटेड सनस्क्रीन होती है वो FDA अप्रूव्ड होती है. वो बहुत सारे चेकलिस्ट को क्रॉस करके उनको क्वालिटी कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं, रैंडमाइज कंट्रोल स्टडीज़ होती हैं, तब एक डिसीजन पर आता है, तब एक सनस्क्रीन लॉन्च होता है. तो जो आपका मेकअप वाला सनस्क्रीन है या उसमें कुछ टिंटेड सनस्क्रीन जो कि मेकअप वाला होता है, BB क्रीम है, दे कैन नॉट रिप्लेस योर सनस्क्रीन. तो ऑलवेज बाय अ गुड सनस्क्रीन विच इज़ FDA अप्रूव्ड. सो डॉक्टर मेघना, एक्सफोलिएशन समर में कितना इम्पोर्टेंट है और ये एक्सफोलिएशन होता क्या है? एक्सफोलिएशन का मतलब होता है जो हमारी स्किन की डेड लेयर होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो सबसे ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है, उसका रिमूवल. सो एक्सफोलिएशन एक मेथड होता है, कंट्रोल्ड वे में हम स्किन की ऊपर वाली लेयर को रिमूव करते हैं. अगर आप ग्लो चाहते हैं, यू वांट योर सीरम्स और क्रीम्स टू बी पेनिट्रेटेड, अच्छे से वो पेनिट्रेट करें, तो एक्सफोलिएशन इज रिक्वायर्ड, बट इट शुड बी डन अंडर गाइडेंस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट. आप पूछ के करें, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप करें. ऐसा नहीं आप डेली एक्सफोलिएट कर रहे हैं. सम पीपल रिक्वायर एक्सफोलिएशन एवरी वीकली और सम में रिक्वायर इट मंथली. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप. आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो बहुत जल्दी एक्सफोलिएट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीरम्स या एसिड से एक्सफोलिएट नहीं कर सकते. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यू कैन गेट इट डन, बट ऑलवेज आस्क योर डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर यू गेट दिस प्रोसीजर डन. सो डॉक्टर मेघना, आपको नहीं लगता कि अगर मुझे बाहर जाना है और अगर मैं अपना फेस कवर अप कर लूँ तो इट इज़ ओके, और शुड आई अप्लाई सनस्क्रीन? व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट? See, you will be amazed to know that UV प्रोटेक्शन फैक्टर होता है सनस्क्रीन का, ऐसे ही क्लोथ प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है. हर क्लोथ उतना ही UV लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है. इट डिपेंड्स अपॉन क्लोथ कितनी बार वॉश हुआ है, वो कितना पतला है, उसका कलर क्या है. ये सब फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं कि कितना वो सन को प्रोटेक्ट कर रहा है, कितना वो आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट कर रहा है. तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है सनस्क्रीन अप्लाई करना. आप कितना एरिया कवर करोगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड स्पेशली उन लोगों के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा सन एलर्जी है, सपोज PMLE के पेशेंट्स हैं, मिलाजमा के पेशेंट्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा सन प्रोटेक्शन वो कर सके उतना करें. तो दैट्स वाई वी प्रमोट अप्लाइंग सनस्क्रीन. So what else should we know about sunscreen to protect our skin apart from all this knowledge जो कि हम आम जनता को नहीं पता है? हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ ऐसे की इंग्रेडिएंट्स जो आप बताना चाहेंगे? कुछ मिथ्स आई वुड लाइक टू क्लियर कि सनस्क्रीन इज नॉट रिक्वायर्ड इन फेयर स्किन. ऐसा नहीं है. सनस्क्रीन सबको लगाना चाहिए. नंबर 2, सनस्क्रीन इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन क्लाउडी डेज. ऐसा नहीं है. हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज वी अप्रोच हायर, मतलब एवरी 1000 मीटर पर 10% ऑफ द स्किन जो एब्जॉर्ब करती है UV लाइट वो बढ़ जाती है. तो यू नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन माउंटेन्स ऑल्सो, क्लाउडी डेज में, विंटर्स में. बच्चों को भी इवन अब सनस्क्रीन वी आर रिकमेंडिंग 6 months एंड अबव को सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं. बट चिल्ड्रन के अंदर आपको फिजिकल सनस्क्रीन लगाना चाहिए. प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग चिल्ड्रन, सेंसिटिव स्किन, दे शुड अप्लाई फिजिकल सनस्क्रीन. बाकी सब केमिकल सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं. सो डॉक्टर मेघना, आपको तो पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है. हर कोई, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, लेडी हो, हाउसवाइफ हो, चाहे टीचर्स हो, कोई भी हो, तो सब अपनी रील्स बनाते हैं. तो अब
अब हमारा परसेप्शन चेंज हो रहा है कि हमें सिर्फ शादी में ही ब्यूटीफुल नहीं लगना है. सो फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली हमें बहुत ही ग्लोइंग स्किन चाहिए और हमें खूबसूरत लगना है. तो आप क्या कहते हैं कि सनस्क्रीन कोई ऐसा रोल प्ले करता है जो हमारी ब्यूटी को एनहांस करे या हमारी स्किन को ग्लोइंग करे? सो आपका क्या व्यूज है इस बारे में? एग्जैक्टली सनस्क्रीन का अगर आप लंबे समय तक एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है. इट डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ फोटो एजिंग. रिंकल्स कम पड़ते हैं आपके फेस पे, फ्रिकल्स कम होते हैं, मोल्स, आजकल पेशेंट्स आते हैं कि मोल्स डेवलप हो गए हैं, दे डोंट लाइक इट, दे डोंट वांट टू गेट इट रिमूव. बट इफ यू अप्लाई सनस्क्रीन तो चांसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ मोल्स एंड फ्रिकल्स कम हो जाते हैं. डॉक्टर मेघना, ऐसा कोई है लाइफस्टाइल चेंजेस हो या कोई डाइट हो जिससे हमारी ब्यूटी एनहांस हो सके? आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सी सबसे पहले ऑल द वाइट्स यू शुड अवॉइड. वाइट ब्रेड, वाइट शुगर, व्हीट, वाइट राइस. जितना कम इनटेक करेंगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आपके फेस पे ग्लो रहेगा. आपकी एजिंग स्लो होगी, जो आपकी पैथोलॉजिकल एजिंग है वो स्लो होगी थोड़ी. और इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डायबिटीज़ होने का चांस कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, पीसीओडी होने का चांस कम होगा. तो वन ऑफ द पॉइंट इज दिस. अल्कोहल, स्मोकिंग, ये दोनों अवॉइड करना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. इसके अलावा एक्सरसाइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, उससे भी आपकी जॉ लाइन शार्प होती है, फीचर्स शार्प होते हैं. वाटर इनटेक, यू शुड इंक्रीज योर वाटर इनटेक. मेक श्योर यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. सो दीज आर सम पॉइंट विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ. मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनस्क्रीन ही रोल प्ले करे, पर हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, ये सब कुछ एक साथ मिलके हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाए. एग्जैक्टली. सो डॉक्टर मेघना, एज यू नो समर सीजन इज कमिंग, तो हमें सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है. उसके बाद मॉनसून सीजन आ जाएगा. सो डू यू थिंक कि जब क्लाउडी होता है तो पीपल दे थिंक कि हम सनस्क्रीन हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे विंटर्स में हम कम यूज़ करते हैं या समर्स में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में कि हमें कब, कैसे और कितना यूज़ करना चाहिए, और क्या हमें समर्स में ज़्यादा करना चाहिए, मॉनसून में कम करना चाहिए एंड विंटर्स में कम करना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस बारे में? समर्स में डेफिनेटली सनस्क्रीन का एप्लीकेशन ज़्यादा होना चाहिए. क्लाउडी और विंटर्स में थोड़ा कम भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समर्स में ज़्यादा होना चाहिए. यू शुड अप्लाई 2 फिंगर लेंथ ऑफ सनस्क्रीन. उसे रीअप्लाई करना ज़रूरी है और कवर करना ज़रूरी है फेस को. So, Dr. Meghna, any key message you want to give to our viewers so that they can follow your lifestyle, and like your skin is so brightening, so their skin will also be very brightening. तो आप कुछ बताना चाहेंगे उनको? I would like to advise my viewers कि हर चीज़ सोशल मीडिया पर जो बिक रही है वो ठीक नहीं है. They should take care of that. फिल्टर्स भी अप्लाई होते हैं, तो ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर यू बाय एनी प्रोडक्ट. ऑलवेज सी द एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट. Do not try newer and newer products. Always do a test patch before you apply any product. Sunscreen is a must. You can skip other molecules, like you can miss toner, but sunscreen is very important. Thank you, Dr. Meghna, for taking out your valuable time from your busy schedule. And I hope that our viewers have got so much of guidance how they can protect their skin from UV sun rays and they can get the glowing skin with your guidance and support. Thank you. But Dr. Meghna, one more thing I want to ask you. If somebody wants to come, कहाँ उनको आना होगा? अगर कोई आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता है तो उनको कहाँ आना है? I am practicing right now in Ghaziabad. In mornings I am at Yashoda Hospital, and in evenings I have my own clinic at Rakesh Marg, Nehru Nagar, Ghaziabad. They can visit us and they can also contact us. They can search us on Google and can contact us. और क्या क्या सर्विसेज आपकी क्लिनिक प्रोवाइड करती है? We provide all range of procedures. Apart from that, clinical consultation procedures ranging from chemical peels, hydrofacials, Botox, fillers. We all do all kind of procedures. And clinical dermatology we also practice. Any sort of hair issues also, we also take care of that also. Thank you, Dr. Meghna, and for your valuable guidance, and our viewers will be benefited with this. Thank you so much. Thank you, viewers, for staying connected, and for more skincare tips from renowned dermatologists of our country, stay connected to our podcast channel #SunscreenMust. And we are also available on YouTube, Spotify, Instagram, and Apple Podcast. Thank you.